بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس وقت انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے نہ روکو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں روک نہ رکھو اس بات سے کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں شریعت کے دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو دی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ طلاق رجعی ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر تم عدت کے اندر ہی اس کے ساتھ رجوع کر لو اچھے طریقے سے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے یہ اختیار موجود ہے۔ ہاں، اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ تمہارے نکاح سے جب نکل جائیں تو تم ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ کیا کر لیں، نکاح کر لیں، تو یہ بھی تمہارے اختیار میں، یہ بھی تمہارے لیے کیا بہتر۔ لیکن یوں نہ کرو کہ جب طلاق دو اور اس کی عدت چل رہی ہو، عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو تم اس کے ساتھ کیا کر لو، نکاح کر لو، تاکہ اس کے اوپر کیا کرو گے، ظلم کرو گے، تاکہ تم اس کو کیا کر لو گے، روک لو گے، پھر اس کو دوبارہ طلاق دے کر کیا کر دو، اس کی عدت گزرنے والی ہو، ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر دوبارہ تم کیا کر لو، رجوع کر لو، تاکہ اس کی عدت کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ کیا ہے، ظلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر تم عدت کو کیا کرتے ہوگے، لمبا کرتے رہو گے، اور یہ تم ان کے اوپر کیا کرتے رہو گے، ظلم کرتے رہو گے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرنا گویا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹھا بنانا ہے اور مذاق بنانا ہے۔ یاد رکھیے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ میں نے تیری بیٹی کے ساتھ کیا کر لیا، نکاح کر لیا۔ جب وہ معاملہ پیش کرتا تو وہ کہتا کہ میں نے تو مذاق میں یہ بات کہی ہے۔ تو اب رب تعالیٰ نے فرمایا بلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی نشانیوں کو تم مذاق نہ بناؤ، ٹھٹھا نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ جو تمہارے اوپر اس نے کیا کی ہیں، نازل کی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحسنہن جد، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر مذاق اور جھوٹ بھی ہو تو وہ بھی کیا حقیقت پر ہی محمول ہوتا ہے۔ فرمایا الطلاق والعتاق والنکاح، تین وہ چیزیں کون سی ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے اور آزادگی۔ اب یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بندہ حقیقت کے اندر نکاح کرے یا طلاق دے یا آزاد کرے غلام کو تو وہ حقیقت پر محمول ہوگا، نکاح بھی واقع ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر جھوٹ کے طور پر اور مذاق کے طور پر اگر کسی کے ساتھ کیا کرتا، نکاح کرتا ہے یا بیوی کو طلاق دیتا مذاق کے اندر، یا غلام کو آزاد کر دیتا ہے جھوٹ کے طور پر اور مذاق کے طور پر، شریعت نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، شریعت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ بھی ہو تو بھی کیا یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، نکاح طلاق اور انفاق کیا ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو بے حیائی ہمارے ٹی وی
चैनलों के ऊपर फैलाई जाती है, ड्रामों स्टेजों के ऊपर फैलाई जाती है कि वो इतनी जो भयानक है कि नई नस्ल को वो दीन से दूर करने के लिए और बेजार करने के लिए क्या है, काफी है। और ये याद रखिए कि इन ड्रामों के अंदर और इन फिल्मों के अंदर जो ये निकाह के जो मामलात किए जाते हैं, ये याद रखें कि अगर एक मजलिस के अंदर वो जिसके साथ निकाह किया जा रहा है और जो निकाह करने वाला और निकाह भी मौजूद है और दो गवाह भी मौजूद हैं, तो वो चाहे इजाबो कबूल झूठ के तौर पर ही करें तो वो निकाह क्या हो जाता है, मुनाकिद हो जाता है। ऐसे ही अगर जाहिरी जिंदगी के अंदर और हकीकी जिंदगी के अंदर जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो दोनों मियाँ बीवी हो हकीकत के अंदर, वो अगर ड्रामे के अंदर एक दूसरे को खामन वहां पर ड्रामे के अंदर झूठ के तौर पर अगर तलाक की ड्रामाई सतह के अंदर एक्ट करते हुए अदाकारी के तौर पर, तो ये याद रखे कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, कि झूठ भी वहां पर हकीकत होगा, वहां पर तलाक क्या हो जाएगी, मुनआकिद हो जाएगी। हक ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत के अंदर फरमाया कि जो औरतें जिनको तुमने क्या कर दिया है, तलाक दे दिया, वो इद्दत उसकी गुजर गई है, तो अगर वो चाहती हैं कि वो दोबारा तुम्हारे साथ ही निकाह कर लें, तो फरमाया जा रहा है कि औरतों के वलियों तुम मना न करो औरतों को इस बात से कि अगर वो इस बात पर राजी हैं और उनका खामन भी क्या है राजी, वो एक दूसरे के साथ निभाने की कोशिश करते हैं, निकाह करने की कोशिश करते हैं, तो फिर तुम्हारा ए वलियो तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम उनको क्या करो, मना करो। अब यहाँ पर ये देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया अन कहना अज़वाजहुन्ना, वो औरतें अपना निकाह खामंदों से करें। तो अब यहाँ पर औरतों की तरफ निकाह करने की निस्बत की गई है, तो आया जो आजाद बालिग औरत है वो अपना निकाह कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो इसके अंदर आइम्मा सलासा इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक का ये नजरिया है, तो वो कहते हैं कि आजाद आकिल बालिग अपना निकाह नहीं कर सकती, उसका निकाह वली करवाएगा, वली की इजाजत के बगैर निकाह मुनक्किद नहीं हो सकता। लेकिन अहनाफ हजरात के नजदीक ये नजरिया है उनका कि वो कहते हैं कि आजाद आकिल बालिग औरत अपना निकाह करवा सकती है। अब आइम्मा सलासा के हम दलाइल कुछ जिक्र करते हैं और इसके ऊपर उसके बाद जो है ना हम अहनाफ के दलाइल जिक्र करेंगे। आइम्मा सलासा में से जो इमाम मालिक, इमाम अबू शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने जो दलील पेश की वो पेश की कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व सुल्तान वली मन ला वली लहु, फरमाया कि निकाह वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता और सुल्तान उस शख्स का वली है जिसका कोई वली वारिस ना हो। दूसरी रिवायत के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि ला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा फ़इन ज़ानियत हिय अल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा, फरमाया कि औरत अपना निकाह ना करे क्योंकि ज़ानिया वो खुद अपना निकाह करती है। गोया कि यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि जो अपना निकाह करेगी वो गोया कि ज़ानिया के साथ उसको ताबीर किया गया। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन फ़इन इश्तजरू फसुल्तान वली मन ला वली लहु, फरमाया कि वली की इजाजत के बगैर कोई निकाह नहीं है, बस तुम्हारा क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सुल्तान जिसका कोई वली ना हो वो उसका क्या वली वारिस होता है। ऐसी दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदे अदल, फरमाया कि वली और दो गवाहों की मौजूदगी के बगैर निकाह मुनक्किद नहीं हो सकता। ये वो रिवायात थी कि आइम्मा सलासा ने अपने मौक़िफ़ पर इनको क्या किया, पेश किया। ऐसी एक और रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्युमा इमरातिन तज़व्वजत बिग़ैर इज़्न वलिय्यिन फनिकाहुहा बातिल व इल्लम यकुल लहा वलिय्युन फसुल्तान वलिय्यु मन ला वलिय लहु, फरमाया कि कोई औरत भी अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह ना कराए, जो ऐसा करे निकाह कराएगी उसका निकाह क्या होगा, बातिल होगा। तो जिसका कोई वली ना हो तो बादशाह उसका क्या वली होता है। अब ये इन रिवायात का मतलब मकसद क्या है, तो अहनाफ हज़रात ने ये बयान किया कि ये उस औरत की बात हो रही है जो आकिला बालिगा ना हो बल्कि क्या हो, वो मजनूना हो या वो क्या हो, छोटी बच्ची हो, सगीरा हो, तो उसका निकाह क्या करवाएगा, वली करवाएगा। हम इन रिवायात को उस मतलब और मकसद के ऊपर क्या करते हैं, महमूल करते हैं। अहनाफ ने अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर जो दलील पेश की वो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अन्ना जारियतन बिक्रम अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करत अन्ना अबा ज़व्वजा व हिय क़ारियतुन ख़य्यरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक औरत जो आजाद जो बाकिरा थी यानी कि बालगा थी, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर आई
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने मेरा निकाह करवा दिया लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इख्तियार दिया, जिससे मालूम होता है कि ये निकाह वली की तरफ से अगर निकाह हो जाए तो वो निकाह नहीं होगा, औरत अपने निकाह रखने की क्या है, वो मुस्तहिक है। ऐसे ही दूसरी रिवायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिक्र तुस्तामरु फी नफ्सिहा व इज़्नुहा सिमातुहा, बाकिरा औरत से मशवरा लिया जाए कि उसका निकाह करवाया जाए या कि नहीं करवाया जाए, और उसकी जो इजाजत है वो क्या, उसकी खामोशी। अब मशवरा तभी लिया जाएगा कि वो निकाह कराने की इजाजत मुजाज होगी, और अगर मुजाज ना हो तो फिर उसे मशवरा करने की क्या जरूरत और क्या हाजत है। ऐसी अगर जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अपनी बेटी का निकाह करवा दिया और वो बाकिरा औरत थी और उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जब ये मामला आया तो सरकार ने उस मियां बीवी के दरमियान क्या कर दी थी, तफरीक डाल दी थी। अब इन रिवायात की वजह से ये मालूम होता है कि अगर औरत अपना निकाह खुद करवाए तो वो करवा सकती है, उसको इजाजत है। ऐसी एक और रिवायत है कि जिसके अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा वो फरमाती हैं कि हजरत खताबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक नौजवान लड़की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर, उसने अर्ज़ किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नबी ज़व्वजनी इब्न अखी लियरफा बी मिन खसीसतिही, फरमाया कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरे भाई अपने भाई के बेटे के साथ यानी कि मेरे कजन के साथ चचाजाद के साथ कर दिया, ताकि मेरा निकाह उसकी वजह से उसके साथ हो, ताकि उसकी जो कमी है, उसकी जो कोताही है, कमजोरी है, वो क्या हो जाए, कमीनगी वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। काला फजाल अम्र इलैहा, राजी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का मामला उसकी तरफ मुनक्किद कर दिया और फरमाया कि अगर तेरे बाप ने निकाह करवाया और तू इसको पसंद नहीं करती तो इस सूरत के अंदर अगर तू चाहे तो उसको क्या कर सकती है, फसख करवा सकती है। फकालत, वो अर्ज करती, इन कद अजस्त मा सना अबी, मेरे वालिद मोहतरम ने जो मेरा निकाह करवा दिया मैं उसको जायज करार देती हूँ। वलाकिन अरदतु अन तअलम निसाउ अलैसा इलल इबाई मिनल आबाई मिनल अम्र शैअन, लेकिन मेरा ये इरादा है कि मैं औरतों को ये खबर दे दूं ताकि ये औरतें मालूम कर लें, उनको पता चल जाए कि निकाह का जो मामला कराने का जो हक है वो बापों के पास नहीं है, वालिदैन के पास नहीं है, जब औलाद क्या हो जाए, आकिल और बालिग हो जाए। अब ये रिवायत क्या इस मामले के अंदर सरीह नस है कि अगर औरत आजाद हो और बालिग हो, वो अपना निकाह खुद करवा सकती है, उसके वालिदैन को क्या होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एक अर्ज करता हूं कि आजकल औरतों का निकाह जो है ना वो करवा दिया जाता, उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, फिर जब मर्जी नहीं पूछी जाती तो आगे जाकर क्या बनते हैं, मामलात बन जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि शरीयत के मुताबिक औरत से उसकी मर्जी पूछ ली जाए कि आया तूने कहाँ निकाह करना, तेरी मर्जी है या कि नहीं, ताकि अगला मामला जो है ना वो मामलात के अंदर आसानियां पैदा हो सके। अब ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।